Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have Manav Kaul and Tilottama. Join me as I welcome both of them on Zoom. Hello. First of all, lovely to have both of you and काफ़ी CA टॉपर की conversations होने वाले यहाँ पर. तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि how was the entire experience, and I could see that you bring a lot of element to the studio. So I'm sure it would be the case for you also, Tilottama, while working with Manav. Oh yes, and very generous co-actor. In fact, there was one particular scene where we had to dance, and वो तो बचपन से नाच रहे हैं. पर हमारे घर में, despite being a Bengali, I'm not a role model Bengali clearly. ना मुझे नाचना आता है, ना गाना. So I was in the situation where we didn't know actually we had to dance in that scene, and then Puneet and Amrit said कि अगर आप थोड़ा उठ के ना it's like उठ के ऐसे नाच कैसे लेंगे? I have to practice and ये वो and then Manav was like, no, I'll just show you the step, and he showed me the step. He broke it down into small bits which were very manageable, and just gave me the confidence, and everybody gave me the confidence that no, you just have to do it, and and we did. So it was really like it's a gift to have such a wonderful co-actor who at that point saw that I'm a bit panicky and didn't increase it, and so that, and then having a crew and directors like that who are so supportive. So it was really a wonderful experience, really wonderful. I think वो मेरा बड़ा favorite scene है जब मैंने देखा था. हाँ. है ना, प्यारा है वो scene. What about you, Manav? I could see कि आपका sense of humor already लगता है CA टॉपर को carry कर रहा है. मैं असल में अपने बहुत ही subtle way था. sense of humor पे बहुत काम करता होता हूँ लगातार. मैंने बहुत लोगों के ऊपर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ट्राई किया है, जो इनसे दोस्ती टूट गई है बिकॉज ऑफ माई ट्राइंग. बट मुझे पुनीत की राइटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ही लगता है, आपने जो 2 एपिसोड देखे हैं, आप आगे भी देखेंगी, कि सारी सीरियस सिचुएशन, सारा कुछ बड़ा ह्यूमेन, बहुत आपके अगल बगल का एक स्टोरी जो आप ही के अगल बगल लग रहा है घट रही है, उसके अंदर एक टिंट ऑफ ह्यूमर लगातार चल रहा होता है. द काइंड ऑफ लाइंस जो आती हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं कि मतलब मैं बहुत देर तक हंसता रहता था. कई बार टेक रोकने पड़ते थे क्योंकि आपको लगता है ये लाइन यहाँ कैसे बोल सकता है. और बट दैट इज़ द जीनियस ऑफ पुनीत, जो इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है एक सिंपल सीन में भी कि वो अचानक आपको पूरा सीन का रंग बदल देता है. तो ये राइटर का काम है, और थैंक गॉड मुझे ये परफॉर्म करने का मौका मिला और मुझे पता लगा कि मेरा ह्यूमर उतना अच्छा नहीं है. And more so, I have to say this, that straight face comedy जो किया था आप लोगों ने, वहाँ पे ऐसे scenes थे, when you are doing something and when you are also getting into picture, एक वो कॉमेडी है वो सीन में, बट इट्स स्ट्रेट फेस के कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये वाकई में सीरियस सिचुएशन का है, या फिर देयर इज सम डिफरेंट एंगल टू इट, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड कॉमिक टाइमिंग अभी मैच करना, स्पेशली लोगों को अभी हंसाना इज वेरी डिफिकल्ट. पीपल गेट टू मच इनटू सीरियस मोड्स, टू मच इनटू साइकोलॉजिकल ड्रामास. हाउ वाज दैट टू पैसिफाई द ऑडियंस विद दैट? I don't know. I don't think like that. I think the genius of Puneet's writing is that वो काफ़ी सहजता से काफ़ी चीज़ें, गहरी चीज़ें बोल देते हैं, और किसी को लेक्चर सुनना मतलब अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कितना भी प्रोग्रेसिव बंदा हो. तो मुझे लगता है कि पुनीत की राइटिंग में वो इतना वो एक प्लेफुलनेस है कि वो सीरियस चीज़ें भी बहुत ईजीली बोल देते हैं. तो इसमें I mean there are all kinds of comedy, and I think the kind of comedy that runs through this film is situational. So it's not, you don't have to perform the comedy actually. You just have to be in. For us, it's the characters in the show, for their situation is not funny at all. It's in life and death for them. Yeah, it's very desperation. It is desperation. So you have to do it with a straight face, obviously, because it is life and death for them. But the perspective of the maker and the creator is for you to be able to also be able to laugh with them and not at them necessarily. And I think that's where his strength is. The lowest kind of humor is when you laugh at somebody. But I think a much more evolved and a sensitive kind of humor, which is really funny and much harder to do, to write, to execute, is when you're laughing with somebody, you're not laughing at them.
I have to ask you also, Manav, doing this role, especially, CA topper, getting into a different activity altogether. How was that experience for you? Because CA topper होकर उसको इसकी क्या ज़रूरत पड़ी that, he does something side hustle जो literally controversial है पूरा. आई थिंक पहले तो उसका सीए होना एक्सीडेंटल है, वो डॉक्टर भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, तो इसका सीए होना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड सो साइड हसल भी है, वो भी दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो जो कहानी जो पुनीत ने वीव की है उसमें जो तड़का है जिसके कारण वो पूरा ह्यूमर निकलता है, एक थ्रिलर एस्पेक्ट आता है और एक ह्यूमन बेसिक एग्जिस्टेंशियल वाली एक कहानी में आपको इतने सारे कैरेक्टर दिखते हैं जो इतने सारी चीज़ों के पीछे, मतलब जो वेब है जो पुनीत ने गुथा है उसका एक सिचुएशन है ये दो की. ये आदमी जैसे उसमें एक हलवाई है जो शुभ्रो ने जो कैरेक्टर किया है. अब ऐसा नहीं है कि हलवाई होने को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नहीं, वो हमको सर्वाइवल बताना है कि ही सर्वाइव्स बिकॉज ही हैज़ अ शॉप विच इज़ हलवाई का शॉप. ऑल्सो उनका साइड हसल कुछ है बिकॉज ही किल्स, वो मारते हैं लोगों को पैसे के लिए. अब आपको लगेगा कि ये तो गलत है, नहीं, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ये एक कहानी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बनती है कि आपको मज़ा आ जाता है इस वर्ल्ड को देखने में, बिकॉज जनरली आप ये वर्ल्ड देखते नहीं हो, ये आपको देखने को मिलता नहीं है. इसकी ऐसी कहानी आपको और ऐसे कैरेक्टर्स आम दुनिया में इतनी सहजता से आते नहीं आपके सामने. वो पुनीत का जादू है. और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत, बिकॉज इसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, तो वी आर थिंकिंग सीए टॉपर इज एडिंग टू समथिंग. इट डजंट, इट जस्ट अ वर्ड फॉर अस. the characters are important, the story is very important, उनका डेस्परेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इवेंचुअली उसके बीच में इतनी छोटी छोटी सुंदर बातें कही है पुनीत ने, जो बिल्कुल ऐसे कही हैं जो होता है ना, आप थ्रो अवे वो सेंटेंस बोलते हो, आपको पता भी नहीं लगता और आपको लेटर रियलाइज होता है, डैम मैन ये कितनी अच्छी बात कही, या कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, क्या, या जिस तरीके से इसमें लड़कियों के रोल लिखे हैं, सारी औरतों के रोल लिखे हैं, इतनी प्यारे रोल लिखे हैं कि आपको बाद में लगता है कि यार मज़ा आ गया देख के, इतना फ्रेशनेस लगी कि एक लड़की अपना पल्लू हटाती है और 2 गन उठाती है और हाई स्पीड में मारती है. व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट दैट वाज. But also this movie, this series has got into trouble on X. A lot of people have been trolling it also because of CA topper getting into this side hustle, making a lot of noise about it. What do you have to say about that? मुझे लगता है कि उसका सिर्फ एक रीज़न है, उन्होंने सीरीज़ देखी नहीं. अगर वो देख लेते तो शायद उनको पता लगता है कि मतलब अगर उसका एक छोटा एस्पेक्ट, बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है, बट वो मैं बताऊँ कि वो सीए को, अपने जॉब को इतना प्रेम करता है और इतना ऑनेस्ट है उससे, और अपने परिवार से इतना प्यार करता है कि वो न जॉब में करप्शन पसंद करता है, न अपने परिवार को के प्रति प्रेम का मोह पाता है. वो उसके बदले अपने शरीर को बेचना ठीक समझता है, बट वो वहाँ करप्शन नहीं करता. सो उसने बहुत हायर स्टैंडर्ड पे सीए को रखा है कि वहाँ टच नहीं करूँगा, चाहे मैं करप्ट हो जाऊँ अपनी पर्सनल लाइफ में, बट आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट जॉब. तो मुझे लगता है ये तो एक एस्पेक्ट है, इट्स नॉट इवन वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक बार देखेंगे सीरीज़ तो उनको समझ में आएगा कि no one is important. Like is Tribhuvan Mishra, see, Tribhuvan Mishra is also not that important. The story, the circumstances जो आपके entertainment के लिए weave किया है वो important है. तो वो and it's not a thing about every chart. It's not about chartered accountancy, and it's not about the profession. वो डॉक्टर भी हो सकता था. He could have been an engineer, जैसे वो mason. रामनिक बहुत होते, एक विलेन थे डॉक्टर डैन, तो उसमें क्या डॉक्टरों का थोड़ी मजाक उड़ाया है, वो एक नाम था वो जो फेमस हुआ है डॉक्टर डैन. बट हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि डॉक्टर तो वो तो विलेन ही होते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है. तो इट्स अ फिक्शनल वर्ल्ड, लिखा है फिक्शन, तो ये इट इज जस्ट सोल पर्पस टू एंटरटेन यू. इट इज नॉट इवन कि हमारा कुछ ऐसा है कि हम ये करेंगे गुरु. बट ऑल्सो आस्किंग यू तिलोत्तमा, एक तरफा प्यार था इस सीरीज में आपको कहीं ना कहीं मानव से, फिर जब आपको पता चला दैट ही इज अप टू समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, वो सीन ऑफ कोर्स आप बताओगे नहीं लोगों को, बट हाउ वाज दैट रिएक्शन फॉर यू? वुड यू एवर लाइक फॉल इन समवन यू वुड नॉट गेट टू नो कि वो क्या यानी हिस्ट्री है, एंड देन इफ यू गेट टू नो हाउ डू यू रिएक्ट to such situations? I've not been in this, but it was heartbreaking to do that scene, because they're just two different world views. Then neither of them are right or wrong. He loves his wife, and for him this was just a job that he had to do to help his family, and she has imagined, she needed that fiction of
to make her reality bearable. You know, she needed to imagine herself to be in love. She needed to imagine that he was in love with her. She needed to imagine that she was special for her to be able to live with her reality. You know, so I really related to that we both have our truths and we both have created worlds of our own, and when those two worlds meet, there's no winner loser. You know, and it was that vulnerability that was so beautifully written by Puneet. To both of you, कभी ऐसे कुछ ऐसा अतरंगी side hustle किया है apart from acting where you felt like, am I really doing this? Or when you know, before you became even actors, like, do you really have to do this as a side hustle? I've done many side hustles, but I don't think there's anything more colorful than the life of an actor. इससे ज़्यादा अतरंगी कुछ हो नहीं सकता. Yeah, then when I decided to write a play, and I was very young, तो जब मैंने ये डिसाइड किया मैं प्ले, और मैंने प्ले लिख भी लिया, तो उसको लोगों को बताने में मुझे बड़ा शर्म आती थी कि मैंने एक प्ले लिखा है, क्योंकि उस समय प्ले राइट्स ऐसे होते नहीं हैं जो मतलब ना उस एज में या वैसे दिखते हैं और प्ले लिख लिया. तो वो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ही अतरंगी काम किया था, बट या वर्कड आउट वेल. I have to ask this as you know, Manav recently also said that आप शायद से सिंगल ही रहना पसंद करोगे, और you know your journey is going to be like that. Don't you wish to like have someone in your life, you know, as a partner, or you feel that destiny is kind of working of you being single? एक तरफ बोल सकता हूँ I'm not that lucky to have a partner, मतलब जो भी है, और दूसरा it's my fault also. There is no space in my life. I can't, मतलब, और वो ऐसा है कि जैसे आप ये पूछ रही हैं तो शायद मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आती ये बात. लेकिन हाँ, जैसे मेरी माँ कभी कभी फ़ोन करके पूछती है, बेटा तो बता क्या चल रहा है, तो माँ से मेरी आजकल ह्यूमर में ही बात होती है, तो क्योंकि अब वो मेरा ह्यूमर समझ गई तो हंसने लगती हैं. बट जनरली देयर इज़ नो स्पेस, और मे बी समथिंग विल हैपन, आई डोंट नो, बट या आई एम नॉट दैट पर्सन. मुझे ऐसा लगता है, तो आई डोंट वांट समवन, मतलब पता ना कि देयर आर पीपल हु शुड डू दिस, एंड आई एम द पर्सन. अभी तक मुझे इतना समझ में आया, लिमिटेड नॉलेज ऑफ मी बीइंग विथ मी सो मेनी इयर्स, कि आई शुडंट इवन think about going that side. And there's also this one thing which you know, which you have openly spoken about. It's about writing, and it's also about, you know, writing, like you write a lot of things, but also, you know, in poetic andaz of yours. Would you like to like write a proper film, you know, on your shoulders? I never written anything for anyone. I don't want to write. No, but what you write otherwise, you know, on your Instagram, or you know, scripting like that way, you know, working on that, enhancing your skills like that, you know, to another level altogether. I am on another level only. But more than acting, like if you would prefer, like, you know, turning into a script writer and doing something on those lines. हाँ, but that's what I don't want to write for anyone. Because writing मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देता है मुझे मेरे कमरे में अकेले में. I can't even see anyone in that space apart from me. And मैं को बहुत टाइम लगता है लिखने में, तो मैं कई महीने इधर उधर घूमता रहता हूँ, कुछ करता रहता हूँ. But that is very space मैं खाता पीता एंजॉय करता हूँ. तो मैं वो जब मैं चौल में भी रहता था, तब भी मैंने बहुत, क्योंकि मेरे प्लेस बहुत लोग देखते थे, तो लोग बहुत डायलॉग राइटिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मेरे को बहुत पैसा देते थे. मैंने तब भी नहीं लिखा, तो अब क्या लिखूँगा. मैं अपने लिए लिखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, सौंता है सुखा है. Lastly, to both of you, what are your upcoming projects you're focusing on? ऐसे तो ऐसे अभी कुछ है नहीं. अच्छा, तो आप सब ह्यूमर के इसमें completely focus करना चाहते हो. What about you, Manav? मैंने ये त्रिभुवन मिश्रा कॉइन किया है. अच्छा. अब देखते हैं क्या होता है. Yeah. Well, lovely chatting with both of you, and thank you so much for your lovely time.